Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty analysis with MJ. So, आज है friends 10th November and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with the trading plan for next trading day, जो कि पड़ेगा 11th November को, right? And if you are new to our YouTube channel, friends, do subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get intimation on it. And also be generous to share the videos with your friends and trading community. Now let's look at a daily chart of Nifty and Bank Nifty. Today, again, Nifty as well as Bank Nifty both opened gap up with a positive cues from the global market. And yet again, today, the market got led up by banking stocks, NBFC stocks, apart from PSE and CPSE, that's PSUs, right? Reality and infra were two more sectors which took a lead today. Among individual stocks, L&T, SBI, SDFC, and SDFC Bank, IndusInd Bank, ICICI, Axis, Tata Motors, even ITC, REC, Reliance were some of the top gainers. Among the losers, we saw that profit booking took place in IT sector as well as pharma sector, which I've been saying for many days that this is the time to book the profit in these sectors, right? So Lupin, Divi's Lab, Dr. Reddy, Oro Pharma, these were the big losers in pharma. Infi, Tech Mahindra, SCL Tech, and partly TCS were losers in IT sector. ओवरऑल ब्रेथ मार्केट की आज फ्रेंड्स पॉजिटिव रही 32 स्टॉक्स एडवांस 18 डिक्लाइन फ्रॉम अ स्टैक ऑफ निफ्टी 50 एंड अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी गेन टुडे ऑलमोस्ट 170 पॉइंट कल 198 पॉइंट गेन किए थे राइट एंड आज 170 पॉइंट के गेन के साथ में निफ्टी क्लोज्ड एट 12,631 बैंक निफ्टी गेन्ड अ वूपिंग 1072 पॉइंट्स कल बैंक निफ्टी ने 735 पॉइंट्स की लीड ली थी टुडे बैंक निफ्टी क्लोज्ड एट 28,606 अगर हम हमारी जो ट्रेडिंग रेंज हम एस्टिमेट करते हैं उसको देखें तो हमने 12,300 से 12,700 निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज एस्टिमेट की थी निफ्टी विद इन दैट ट्रेडिंग रेंज रहा और सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को उसने रेस्पेक्ट किया हाउएवर बैंक निफ्टी सेकेंड डे इन क्यू ब्रोक आर upper level of resistances, right? And हमने 27,000 से 28,000 तक का एस्टिमेशन किया था बेस्ड अपॉन डेटा पॉइंट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस बट बैंक निफ्टी टुडे आल्सो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट उसके ऊपर गया anyway but it's a good surprise, right? So if you look at candlestick perspective, Nifty as well as Bank Nifty, they're making a higher high and higher lows, so uptrend continues. डेली में एज वेल एज वीकली में दोनों ने बुलिश कैंडल स्टिक्स बनाई हैं इनफैक्ट अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो रोज ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ब्रेकआउट दे रहा है राइट बट नाउ दीज गैप it seems it may turn out to be a exhaustion gap. There are 5 types of gaps, so the final and the last gap is exhaustion gap. So we'll look at that whether it is really exhaustion gap or what kind of gap it is, right? अगर हम प्राइस एक्शन से देखें फ्रेंड्स तो निफ्टी में आपको दिखेगा लोअर साइड में सपोर्ट्स अवेलेबल हैं 12,544 पे 12,478 पे एंड 12,400 पे 3 लेवल के सपोर्ट है नीचे उसके नीचे 12,380 पे 23% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है ऑन अपर साइड यू कैन सी दैट 12,644 12,700 12,785 एंड 12,800 के ये 4 रेजिस्टेंस लेवल हैं सो रफली वी कैन से 12,400 से 12,800 की रेंज हमको कल के लिए प्राइस एक्शन से दिखाई दे रही है सिमिलरली इन बैंक निफ्टी फ्रेंड्स अगर देखें तो लोअर साइड में 28,360 28,150 27,918 एंड 27,650 के लेवल दिखा रहे हैं डाउन साइड में एंड अपर साइड में रेजिस्टेंस के तौर पे 28,810 29,134 29,273 एंड 29,797 ये लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सो आई वुड रादर जॉट इट फॉर यू सो 12,380 on a lower side. Now market has become volatile. You can see the range has increased drastically. So 12,785
right? Let me correct this. So you need to, consistently monitor 7. Seems, yeah. So 7. I think there is some issue with my writing pen, friends. 785 एंड मैंने बैंक निफ्टी की ऑलरेडी आपको लिमिट बता दी है, राइट? सो दिस इज द रेंज फॉर फ्रॉम द प्राइस एक्शन परस्पेक्टिव. लेट्स गो टू द डेटा पॉइंट्स एंड सी व्हाट इज ऑप्शन चेन सजेस्टिंग, राइट? सो ऑप्शन चेन अगर देखते हैं फ्रेंड्स, आज मार्केट क्लोज हुई है 12631 पे, तो 12650 को हम एट द मनी कंसिडर करेंगे और उसके आसपास में देखेंगे कि किस टाइप के बिल्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, राइट? तो 12650 के आसपास में फ्रेंड्स यू वुड सी on put side bulls have taken the positions and on call side bears have taken the position here, right? So bulls have created good amount of open interest, almost 1.2 million fresh and 1.3 overall open interest on put side. So that's acting as a support 1. Support 2 will be 12,500 जहां पे कि 2.9 million contracts हैं, और 12,400 will act as a support 3 जहां पे कि 2.4 million ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट हैं. बट जो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग दिखाई दे रही 12,500 से 12,600 के बीच में दिखाई दे रही है, राइट? 12,750 पे थोड़ा कुछ खास फ्रेश पुट राइटिंग नहीं हुई है. सो आई थिंक बुल्स हैव आल्सो गॉट टायर्ड. नाउ बियर्स ने किस टाइप की पोजीशन बनाई अगर देखें तो 12,500 पे 1.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी एग्जिस्टिंग है, बट ओवरऑल आज बियर्स ने अपनी पोजीशन काट दी है काफी, राइट? यू कैन सी द काइंड ऑफ अनवाइंडिंग दे हैव डन टुडे. 12,600 पे आज थोड़ी सी कॉल राइटिंग हुई है, दैट सेज दैट बियर्स आर एक्सपेक्टिंग कि 12,600 से नीचे रहेगी निफ्टी. सो दिस कुड एक्ट एज आर रेजिस्टेंस 1 इफ मार्केट गोज बिलो 12,600. 12,700 पे R2 रहेगा हमारा यहाँ पे, ऑल्दो कॉल अनवाइंडिंग हुई है 7 लाख की, बट 1.9 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे एग्जिस्टिंग, राइट? एंड यू कैन सी दैट 12,800 पे still 14,000 contracts की unwinding हुई है, but overall 1.7 million contracts. So that will work as resistance 3. So 12,800 could be ultimate, although 13,000 पे अगर आप देखेंगे तो even 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट की अनवाइंडिंग होने के बाद में भी 2.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे. बट फॉर दिस रेंज आई कैन थिंक ऑफ 12,000 400 to 11,004. Excuse me guys. So 12,400 to 12,800 की रेंज हमको यहाँ पे ऑप्शन चेन से दिखाई दे रही है, राइट? तो ये मैं रेंज यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट्स ऑप्शन चेन. इसका पीसीआर है फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 1.65. कल पीसीआर था 1.62 आज के लिए. सो बुलिश बायस यहाँ पे बना हुआ है. सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी जो ट्रेडिंग रेंज दिखाई दी 28,000 से 29,500 के आसपास में दिखाई दे रही है, जो कि हमारे प्राइस एक्शन से मोर और लेस मैच करती है. ऑल्दो बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन से जो प्राइस रेंज दिखाई दे रही है अपर साइड में ज्यादा दिखाई दे रही है. दोनों में बुलिश बायस है. अगर हम आज प्रोविजनल डेटा की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रोविजनल डेटा को देखते हैं तो आज 5,627 करोड़ की बाइंग की है FIIs ने इन कैश मार्केट. ऑब्वियसली most of the funds flew into the banking sector, and the DIs were net seller with 2,309 crore rupees worth equities in cash market, right? At this point of time, FIIs, pros as well as retailers are bullish in the options front, right? RSI अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे निफ्टी का अभी 76 के आसपास में चल रहा है. अगेन रिफ्लेक्ट्स स्ट्रेंथ, बट एट द सेम टाइम ओवरबॉट दिखाता है. आज इंडिया विक्स ऑल्दो मार्केट ऊपर गई, बट इंडिया विक्स आज 7% करीब करीब बढ़ गया है. सो दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न. मार्केट इज इन ओवरबॉट जोन विद स्टॉकेस्टिक्स ऑन डेली चार्ट एट 98 and 85 on a weekly chart. So that also is a matter of concern. International markets completely bullish हैं, but आज करेक्शन भी हुई है यूएस के मार्केट में. अगर आप
ऑब्जर्व करेंगे तो यूएस मार्केट को, राइट? सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मार्केट बीइंग इन ओवरबॉट जोन, you know you can expect some profit booking and consolidation, because market हमेशा एक अप मूव में जा नहीं सकती है। जिस हिसाब से जो अप मूव आई है, इट्स वर्टिकल राइज काइंड ऑफ थिंग, राइट? दिस इज नॉट रियली वेरी हेल्दी. So if the market has to go further up, it has to consolidate, it has to cool off. The indicators have to cool off, right? So tomorrow's trading range we have already seen, 12,400 to 12,800 की. Now let's see कि किस टाइप की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमको निफ्टी में कल मिल सकती है. तो we'll see that on a 15-minute chart, friends. 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 12,644 के ऊपर अगर निफ्टी जाती, फ्रेंड्स, इट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग रेंज ऑफ 12,700. सो ऑलमोस्ट आपको 50-60 पॉइंट का एक अप मूव यहाँ पे दिख सकता है. 12,550 से, इनफैक्ट ये भी नहीं, लेट मी rather take this range a little below. So 12,525 से लेके 12,631 और 640 की रेंज को नो ट्रेडिंग जोन समझें. यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल रहेगी. 12,530 के नीचे अगर मार्केट जाती है, यू कैन हैव अ शॉर्ट पोजीशन फॉर 12,478 फर्स्ट टारगेट लेके. सेकंड टारगेट कुड भी 12,400. अगर मार्केट में किसी भी टाइप की बियरिशनेस आती है, फ्रेंड्स, तो you can book your profits in, or at least part profits if you are in swing and if you are in a good position, if you are in good profits, right? So nifty के लिए थोड़ा caution रखें. अगर आप निफ्टी को लॉन्ग साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो टाइट स्टॉप लॉस लग के ट्रेल करते रहे अपने प्रॉफिट्स को. सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं, फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी में 28,360 से लेके 28,810 तक ऑलमोस्ट ये लेट्स से काफी बड़ा एक रेंज है जो कि वोलेटाइल रेंज है. इसको थोड़ा अवॉइड करें. 28,810 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाती है कल, यू कैन गो लॉन्ग फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 29,134. सो दैट मीन्स समवेयर अराउंड आपको 200 पॉइंट के आसपास में मिल सकता है. उसके ठीक 150 पॉइंट ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस है, सो प्रॉफिट बुक कर ले वहां पे. अगर मार्केट 28,350 के नीचे जाती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अनलेस अंटिल देयर इज अ क्लियर साइन, शॉर्ट भी ना करें, because there is a lot of funds flowing in from FIIs and that's making our market completely bullish. So it's better to be stock specific at this point of time rather than इंडेक्स स्पेसिफिक. और अगर आप इंडेक्स को भी ट्रेड कर रहे हैं तो रादर देन निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, यू कैन लुक एट निफ्टी बीज एंड बैंक बीज, सो दैट योर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब आपके पास में लंबे पीरियड की होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए एटलीस्ट, अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं उन पे, इन एसेट क्लासेस पे, राइट, रादर देन फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी होती है. सो यू नीड टू look from that perspective because market is already in overbought zone. There are a few positive signs, but at the same time there are a few negative signs also. देखो, अगर यूरोपियन मार्केट क्लोज्ड होते हैं या वहां पे लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट होता है, जो कि होते हुए दिखाई दे रहा है, दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स. एंड यू कैन ऑलरेडी सी दैट यूरोप में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है, राइट? बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं. अब आई एम श्योर अभी बाय नाउ it would have come. I have not seen that, so have a look at that also, right? That has impact on the market. Apart from that, Q2 के रिजल्ट आ रहे हैं. So far कंपनीज के रिजल्ट ठीक ठाक हैं, so that's positive. And कल नहीं परसों आपका आईआईपी का डेटा आएगा एंड सीपीआई का डेटा आएगा. उसके ऊपर एक नजर रखें. इन्फ्लेशन का डेटा ऑलरेडी हाई है जो कि नेगेटिव है मार्केट के लिए, उसके ऊपर भी नजर रखें. एज एन इंट्राडे ट्रेडर, लुक एट ऑप्शन चेन, फ्यूचर, ओपन इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर्स इफ यू आर स्टॉक स्पेसिफिक. इंडिया वीक्स यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखना न भूलें. और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाएं. प्रॉफिट में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहें. आई एम श्योर दिस एनालिसिस इज हेल्पिंग यू टू नेविगेट थ्रू द मार्केट कॉन्फिडेंटली एंड विद profitability, right? Thank you very much for watching the video, friends, and wish you a very, very happy Diwali in advance. And if you have any queries or if you want us to make
more videos or videos of your subjects, then do write in the comment box or in the community tab here. We have posted many videos here, which can help you to which can help you to understand the market better, to learn technical and fundamental analysis. Do take advantage of that, friends, and also do share these videos with your friends and trading communities who can be enriched in knowledge by looking at these videos. Thank you. Goodbye. Good luck. Happy trading. Happy investing.